Assalamu alaikum dear students to the third section of the hand and finger sport injuries. So पिछली दो सेशन में हमने जो बात की थी उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं. We discussed the history of the taking the injuries of the hand and fingers. Then we discussed the common and least common causes of the hand and finger pain. After that, we discussed the different extensor compartment of the wrist. After that, we discussed the anatomical structure in the examination, in which we discussed the active movements of all joints as well as the active movements of thumb, register movement, and some special tests. Then we discussed the investigation of the hand and finger injuries. After that, we discussed the principles, the general principle regarding the management of the injuries of the hand and fingers. We discuss how we can control the edema through these tendon glide exercises and keeping them in the intrinsic plus position, which is that position. This is the difference between intrinsic plus and intrinsic minus position. We discuss different exercises as well as the sprinting and tapping and two types of tapping, the difference between static and dynamic approaches. We discussed that. After that, we discussed the fracture of the first metacarpal brace and then the fracture of the other metacarpal. After that, we discussed the fracture of the proximal phalanx fracture, then the middle phalanx, and then the distal phalanx fracture. There was the classification of the middle phalanx breast fracture regarding to the Chino et al. After fracture of all the joints, we discussed the dislocation of the metacarpophalangeal joint, then the dislocation of the PIP joint, and then the dislocation of the distal interphalangeal joints. We discussed then the sprain of the ligament, specifically the important one, the most common one, the ulnar collateral ligament of the first MCP joint. We discussed then the Steiner lesion, that how it developed and what does it mean, and what is the mechanism of the development of that Skinner lesion of the thumb. We discussed the radial collateral ligament of the first MCP joint, which is less common as compared to the ulnar collateral ligament of the MCP joint. In this session, we will talk about the capsular sprain of the first MCP joint, as well as we will discuss the mallet finger and other condition of the fingers. The capsule sprains of the first MCP joints then extremely common injury, specifically in those sports in which involve the ball handling. Like we can say that basketball या क्रिकेट की बात कर सकते हैं. क्रिकेट में भी वहां पे जो है बॉल हैंडलिंग होती है, या रग्बी में हो सकती है, और रग्बी में भी वहां पे बॉल जो है वो फेंका जाता है और उसको फिर होल्ड किया जाता है तेजी के साथ इसको. या इसके अलावा बास्केटबॉल बेस ये रग्बी के अलावा जो आप अमेरिकन फुटबॉल कह सकते हैं, इन तमाम जिसमें देयर इज चांसेस ऑफ हिटिंग द बॉल विद द फिंगर्स, इसमें हो सकती है. They result from a hyperextension injury and are prone towards reoccurrence. As जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, much of the injuries they are in the hyperextension injuries, और इसमें ये है कि देयर इज रिपीटिशन हो सकती है. कैन हीलिंग के बाद देयर में भी रिपीटिशन ऑफ द इंजरी अगेन एंड अगेन. अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो रिहेबिलिटेशन भी हो सकती है, लेकिन रिहेबिलिटेशन में हमने एक चीज का ख्याल रखना है कि हमने इसको, चूंकि इसकी मैकेनिज्म हाइपर एक्सटेंशन है, दैट्स वाई आवर मेन फोकस इज टू प्रिवेंट द हाइपर एक्सटेंशन. क्योंकि अगर हम हाइपर एक्सटेंशन को रोक नहीं पाएंगे और वहां पे हाइपर एक्सटेंशन होती है बार बार, सो इट विल लीड टू द रिकरेंस ऑफ दैट इंजरी एंड एज वेल एज इसकी जो हीलिंग है वो भी जो है रिवर्स हो सकती है या वो स्टॉप हो सकती है. अब ये हाइपर एक्सटेंशन हम किस तरह कर सकते हैं? सो मुख्तलिफ ऑप्शन है. एक जो मोस्ट कॉमन ऑप्शन है कि यहाँ पे एक ब्रेस जो है, थर्मोप्लास्टिक ब्रेस जो है, ये एमसीपी जॉइंट के डॉर्सल साइड पे जो है पहनाया जाता है, जिससे व्हेन इट इज ऑन द डॉर्सल साइड, सो ऑब्वियसली दे इट विल प्रिवेंट द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ दैट फर्स्ट एमसीपी जॉइंट. यहाँ इसके अलावा जो पीआईपी जॉइंट्स है, जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स है, इनमें भी विन देयर साइड वेब फोर्स, यानी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, दोनों तरफ से अगर फोर्स आ जाती है, सो देयर में भी इंजरीज टू द कोलेटरल लिगामेंट. और यहाँ पे अगर कंप्लीट टीयर हो जाते हैं तो वहां पर जो है इंस्टेबिलिटी जरूर होगी, एंड दैट विल बी मोर स्ट्रेस ऑन द लेटर साइड.
इस इंजरी की भी मैकेनिज्म जो है दिस इज हाइपर एक्सटेंशन स्ट्रेस, और इस जगह पे एज इट इज इन द पीआईपी जॉइंट, तो जिस तरह हमने डिस्लोकेशन में डिस्कस किया था कि जब डिस्लोकेशन होती हैं तो वहां पर हाइपर एक्सटेंशन में डॉर्सली हाइपर डिस्लोकेशन होती हैं, जिससे पोलर प्लेट जो है इसकी रप्चर होने की चांसेस होते हैं। ये इंजरी जो है ये पीआईपी इंजरी, इसमें भी जो है हाइपर एक्सटेंशन स्ट्रेस जो है दे में इंजर्ड द ओलर प्लेट, और इस ओलर प्लेट से एवल्जन हो सकती है, एवल्जन फ्रैक्चर हो सकती है, क्योंकि इट इज अटैच टू द बेस ऑफ द मेटाकार्पल, सो वहां से ये एक एवल्जन फ्रैक्चर भी कर सकता है। सो दोनों की चांसेस है डेट में भी सिंपल एवर्जन आर द एवर्जन फ्रैक्चर। अगर पार्शियल टीयर है, अगर ट्रीटमेंट की भी बात की जाए तो पार्शियल टीयर को हम सिंपल जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है लाइक एक्सरसाइज और बॉडी टैपिंग, उससे भी हम जो है ट्रीट कर सकते हैं और इसकी हीलिंग हो पाएगी। बट इन द केस इफ देयर इज कंप्लीट टीयर, और कंप्लीट टीयर जो है फिर इसके लिए जो आइडियल ट्रीटमेंट है दिस इज द सर्जिकल रिपेयर। हालांकि जो कंप्लीट टीयर है उसमें भी जो है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो है ये काफी हद तक अच्छे रिजल्ट दे रहता है, but the most ideal treatment in case if it is in athlete, so then the surgical repair जो है this is the most important recommendation for the management of these tear, so depend करता है it is partial tear or complete tear। द नेक्स्ट इज द मेलेट फिंगर। ये मेलेट फिंगर थोड़ा सा जो पिछले हमने डिस्कस किया था ना कि डिसलोकेशन, या इसके बाद हमने अभी स्प्रेन डिस्कस किया, या फिर अब मोस्ट इन तमाम में हाइपर एक्सटेंशन थी, बट मेलेट फिंगर जो है दिस इज फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। और यूजुअली किस वजह से फ्लेक्शन होती है, बिकॉज वहां पे जो एक्सटेंसर मैकेनिज्म या जो एक्सटेंसर टेंडन होता है विच इज अटैच ऑन द डीआईपी, उसकी एवल्जन होती है। when that tendon is avulsed, so obviously the extensor mechanism is disrupted and the joint will be held in the flexion, so that's why it is called as the flexion deformity। क्योंकि यहाँ पे पिछली जो हाइपर एक्सटेंशन डिफॉर्मिटीज थी या हाइपर एक्सटेंशन मैकेनिज्म इंजरी का था, तो उसमें जो इंटीरियर स्ट्रक्चर्स थी स्पेसिफिकली द ओलर पैलेट, उसकी डिस्ट्रप्शन की चांसेस थी। नाउ इट इज फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, तो ऑब्वियसली जो डार्सल स्ट्रक्चर है उसकी इंजर होने की एवल्जन होने चांसेस होते हैं। यूजुअली ये तब होता है जब जो टिप ऑफ द फिंगर जो है जिस पर कोई बाल लग जाए, और बाल लार्ज साइज के यानी बास्केटबॉल हो सकती हैं, रग्बी बॉल हो सकती है, अमेरिकन फुटबॉल जो ग्रेड जोन है हो सकती हैं, दैट में भी एक क्रिकेट बॉल हो सकती है। ड्यूरिंग द कैचिंग वहां पे तेज शॉट लग गया और कैच करने की कोशिश में डायरेक्ट द बॉल हिट द फिंगर टिप, तो वहां से भी जो है ये इंजरी हो सकती है। और इस इंजरी का मैकेनिज्म ये होता है कि इस जैसे ही बॉल जो है टिप पर लगती है, सो डीएपी जोन जो होता है ये फ्लेक्शन में चले जाती है, और जैसी फ्लेक्शन में चले जाती हैं सो देयर इज सडन सिवियर एक्सटेंशन, सिवियर स्ट्रेचिंग ऑफ द एक्सटेंसर टेंडन ऑन द डॉर्सल साइड, जो एक्चुअली वहां पे, और एक्सटेंसर मैकेनिज्म जो है चूंकि वहां पे नॉर्मली एक्सटिव कंट्रैक्शन में होता है, यानी ऑलरेडी उसने फिंगर्स को ओपन रखा है, फिंगर्स को एक्सटेंशन में रखा हुआ है, सो इट मीन दे आर इन कंट्रैक्शन, तो इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी एक्सटेंडेड जॉइंट जो है वो फ्लेक्शन में आ जाता है। इसकी वजह से जो है या तो कंप्लीट डिस्ट्रप्शन हो जाती है या ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है दैट एक्सटेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द डीआईपी जॉइंट, यानी जो जॉइंट पहले से एक्सटेंडेड था और डायरेक्ट जैसे फ्लेक्शन पर आ जाती है, सो ऑब्वियसली उसके डॉर्सल स्ट्रक्चर जो एक्टिवली इन्वॉल्व थी उसको उन्होंने एक्सटेंशन में रखा हुआ था, उसकी या तो इस डीआईपी की फ्लेक्शन की वजह से या तो स्ट्रेचिंग हो जाएगी, ओवर स्ट्रेचिंग, या जो है कंप्लीट रप्चर हो जाएगी, दोनों की चांसेस है। ये मुख्तलिफ किस्म के एथलीट्स में हो सकती है, लाइक बेसबॉल कैचर में हो सकती हैं, फील्डर्स में हो सकती हैं, फुटबॉल रिसीवर्स में हो सकती हैं, क्रिकेटर्स में हो सकती हैं, एंड एज वेल एज द बेसबॉल प्लेयर में भी हो सकती हैं। एग्जामिनेशन अगर हम इसकी कर ले तो हमें पहले तो डार्सल साइड जो है जहाँ पे ये एक्सटेंसिव मैकेनिज्म की रप्चर हो जाती है वहां पे हमें टेंडरनेस मिलेगी, यानी इफ वी provide some over pressure on the dorsal aspect of the distal phalanx, so there will be tenderness।
और अगर पेशेंट से फिर हम कहें कि वो अपनी इस फ्लेक्स जो डीआईपी है उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करे, तो नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके लिए जो जरूरी है, दैट इज द हेल्दी एक्सटेंसिव मैकेनिज्म, वो तो हेल्दी, वो तो ऑलरेडी डिस्टर्ब या ओवर स्ट्रेच हो चुका है, एंड दैट इज द रीजन द पेशेंट विल बी अनएबल टू एक्चुअली एक्सटेंड द डीआईपी जॉइंट। और उसी तरह जो है ये फ्लेक्शन में ही रहेगा द डिस्टल इंटरपेलेंजियल जॉइंट, and that is the reason it is known as the flexion deformity। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता है तो फिर जो कंडीशन बंदीगी उसको फिर कहते हैं द क्रॉनिक मेलेट फिंगर, और इसमें मोस्टली जो है ये इसकी कॉन्सिक्वेंसेस थोड़ी सी जो है ये सिवियर होते हैं, इवन सब इरेड्यूसिबल चेंजेस भी आ सकती हैं। और इससे ये जो फ्लेक्सियन डिफॉर्मिटी है, ये सम टाइम ये जो फ्लेक्सियन डिटोना प्रोफंडस टेंडन की जो एक्शन की वजह से भी होती है, क्योंकि वहां पे फिर क्या होगा, द अनअपोज्ड एक्शन यानी उसका जो कंपिटिटर है, जो इनका अपोजिट पार्टनर है, वो एक्चुअली डिस्टर्बेड है। सो दैट्स व्हाई देयर विल बी इन कंट्रैक्शन। नॉर्मली इफ द जैसे इंटागोनिस्ट एगोनिस्ट होता है, तो व्हेन इंटागोनिस्ट नहीं होता तो ऑब्वियसली दैट विल लीड टू द मोर एंड मोर एक्शन इन द अपोजिट मसल है, और जिसकी, और ये एक नॉर्मल फिनोमेना भी होता है। रेडियोग्राफी जो है ये करानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एवल्जन फ्रैक्चर की बहुत चांसेस होती हैं। साथ साथ जो है हमने यहाँ पे सबलक्सेशन को भी जो है देखना होता है। वी कांट एक्सक्लूड द सबलक्सेशन ऑफ द डीआईपी जॉइंट व्हेन द बॉल हिट द टिप ऑफ दैट फिंगर इन अ सिवियर विद अ सिवियर फोर्स। इसलिए ट्रीटमेंट से पहले जो है हमने इसकी रेडियोग्राफी जो है जरूर करनी चाहिए, just to exclude any avulsion fracture of the distal phalanx or any other sort of injury, as well as the DP joint dislocation. So this is actually the mechanism, the rupture of the extensor mechanism. We can see here, this is the proximal side, this is the dorsal, this is the extensor mechanism. And when there is severe flexion, जैसे यहाँ पर बल लग जाती है, that will flex the DIP joint, जिसकी वजह से ये जो ऊपर वाला डॉर्सल साइड टेंडन है, ये या तो ओवर स्ट्रेच हो जाएगा या इसके डिस्ट्रप्शन हो जाएगी। इस बाजों का इस तरह होता है कि ये टेंडन रप्चर की बजाय जहां पर ये अटैच होते हैं, यानी यहाँ पर अगर आप देखें देयर इज रप्चर ऑफ द टेंडन, लेकिन यहाँ पे टेंडन जो है रप्चर की बजाय जिस बोन पर ये अटैच है वहां से ये न सिर्फ डिटेच होता है, बल्कि सम पार्ट ऑफ द बोन भी अपने साथ ले उड़ाता है, एंड दैट इज एक्चुअली द एवल्जन फ्रैक्चर। इसी को जो है एक्सक्लूड करने के लिए रेडियोग्राफी जरूरी है, क्योंकि फिर इसकी जो प्रोटोकॉल है मैनेजमेंट ये थोड़ी सी चेंज हो जाती है। या यहाँ पे फ्रैक्चर भी हो सकती है, इवन यहाँ इस तरह भी हो सकता है कि ये देयर इज नो सच एवल्जन फ्रैक्चर बट द जॉइंट इज बीइंग डिसलोकेटेड। तो ये इन सब के लिए जो है रेडियोग्राफी जो है ये जरूरी होता है व्हेन देयर इज सच मेलेट फिंगर। The virgin fracture is considered significant if that involve more than one third of the joint surface. Suppose if there is only 30%, yeah, 25% joint surface is involved, so it's not a big problem. But if there is suppose a 60% of the total joint surface is being involved in the fragment, so then obviously it is a very significant injury. And in that case, the ORF, it is required ORF mean the open reduction and internal fixation. If there is any subluxation, तो उसके लिए भी जो है ORIF की जरूरत होगी, open reduction internal fixation to undo that subluxation. अगर मैलेट फिंगर में ऐसी कोई सिग्निफिकेंट इंजरी नहीं है, यानी ग्रेटर देन वन थर्ड इंजरी नहीं है, कोई सबलक्सेशन नहीं है, एंड देयर इज एन अनकॉम्प्लिकेटेड मैलेट फिंगर, तो फिर वहां पे सिंपल हम स्प्लिटिंग कर सकते हैं, स्प्लिंटिंग कर सकते हैं, सॉरी, डीआईपी जॉइंट की। लेकिन चूंकि ये एक फ्लेक्सर मैकेनिज्म के है या फ्लेक्स डिफॉर्मिटी है, तो इसलिए इसको इसी इंजरी को हम थोड़े से हाइपर एक्सटेंशन में रखेंगे, क्योंकि जब वहां पे ओलर प्लेट की हीलिंग हम चाहते थे और वहां पे ओलर प्लेट जब उसके डिस्पर्शन होती थी, तो हम उसको थोड़ा सा जो है 10 to 20 डिग्री फ्लेक्शन में रखते थे ड्यूरिंग द स्प्रिंट।
Now the mechanism is opposite of the previous conditions. Now the injury is on the dorsal side. That's why we have to provide less and less stress on the dorsal side. And for that, we should keep that DIP joint in the hyper extension. और कितने टाइम के लिए हमने इसको स्प्लिंट में रखना है? एटलीस्ट इट शुड बी 2 months इसको रखना चाहिए, और फिर इसके बाद डिपेंड ऑन द situation. If there is still the problem exists, again we can increase the splinting duration. Otherwise, these 8 weeks they are enough. और लेकिन इन दरमियान जो है, जब तक ये स्प्लिंटिंग उसकी लगी होती है, इसकी रेडियोग्राफ जो है हर वीक इसकी रेडियोग्राफ करनी चाहिए, और इसकी मॉनिटरिंग जो है ये करनी चाहिए, जरूरी है ये। फिर स्प्लिंट को जो है इसको एडिशनल 6 to 8 weeks जो है हमने इसको पहनाना है, स्पेसिफिकली इवन नाइट के दौरान, व्हेन ही इज स्लीपिंग या व्हेन ही इज टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी। अदरवाइज ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन ही इज नॉट participating in sports activity, so there should be unwearing of this splint. Only the splint after the 8 weeks यानी 2 months, उसके बाद जो है हम इसको स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट कर रहा है तो एडिशनल हम इसको स्प्लिंट पहना सकते हैं, इनिशियल 1.5 month और 2 months। अगर यहाँ पे किसी पॉइंट पे हमें पता लगे कि इंजरी जो है दोबारा हो चुकी है, वहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस है जो इनिशियल से वो दोबारा आ गए हैं, तो हमने ट्रीटमेंट को दोबारा से रीप्लान करना है, री इंस्टीट्यूट करना है, जस्ट टू सीक दैट प्रॉपर एंड appropriate management for this recurrent deformity. स्प्लिंट किसी भी चीज से हम ले सकते हैं, इट मे बी मेड ऑफ द मेटल और प्लास्टिक, और इसको आप ओलर या डॉर्सल दोनों सरफेस पे पहना सकते हैं, बट इन केस वी शुड कीप देम लिटिल बिट हाइपर एक्सटेंशन जस्ट टू हील दैट एक्सटेंशन मैकेनिज्म। इस दौरान जो है पेशेंट को थोड़ी बहुत जो पल्प सेंसेशन हो सकती है। व्हाट वी मीन बाय द पल्प सेंसेशन, एक साइड पे डॉर्सल साइड पे नेल होता है, लेकिन ओलर साइड पे थोड़ा सा सॉफ्ट फ्लेशी पार्ट होता है, दैट इज एक्चुअली नोन एज द पल्प, जो एक्चुअली सॉफ्ट फ्लेशी टिप ऑफ दैट फिंगर इज नोन एज द पल्प। इसी तरह जो है एक और एहतियात करनी जरूरी है कि ड्यूरिंग दैट स्प्लिंट वीलिंग हमने इसकी जो एरिया है उसको थोड़ा सा ड्राई रखना है, और रेगुलरली इसको हमने एग्जामिन करना है, मॉनिटरिंग करना है। किस चीज के लिए हमने स्लफ स्किन के लिए। आप स्लफ स्किन क्या होता है, एक्चुअली जो डेड टिश्यू होती है, यानी जो टिश्यू खराब हो जाती है, डेड टिश्यू बन जाती हैं, सो वो स्किन से जुदा हो जाती है, एंड दैट डिटैच एट दैट हैंगिंग स्ट्रक्चर विच इज इक्वली डेड टिश्यू इज नोन एज द स्लफ टिश्यू स्किन। Maceration क्या होता है? Maceration is the softening, whitening of the soft tissue just because of the moisture. That is known as the maceration. तो हमने maceration जो है या इस तरह स्लब स्किन, इसको चांसेस है इसको देखने के लिए इसको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, रेगुलर ऑब्जर्वेशन जो है जरूरी होता है। This is known as the stack splint. A dorsal splint can also be used in such cases. डुअल उसमें भी कर सकते हैं। द मेन थिंग इज जस्ट टू कीप देम इन द लाइट वेट एक्सटेंशन। जब हम मेलेट फिंगर के जो है ट्रीट करते हैं तो एक चीज का ख्याल रख रहे हैं जो अब बार बार हम डिस्कस करते हैं कि द जॉइंट शुड बी कीप्ड इन हाइपर एक्सटेंशन, ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे हमने एक्सटेंशन मैकेनिज्म को ट्रीट करने के लिए उसको टाइम देना होता है, चाहे ये रात हो दिन हो। इनिशियल 8 weeks में हमने ऑल द टाइम उसको हाइपर एक्सटेंशन में रखना चाहिए। अगर स्प्लिंट जो है इवन हम स्प्लिंट रिमूव भी कर देते हैं, सपोज इसकी सफाई के लिए जरूरी है या स्प्लिंट चेंज करना होता है या स्प्लिंट से थोड़ा सा इरिटेशन होता है, तो उस टाइम पे भी हमने कोशिश यही करनी है कि फ्रिक्शन ना हो पाए, क्योंकि अगर इफ देयर इज डीआईपी फ्रिक्शन हो जाती है, so there may be again over stretching of the extensor mechanism, and जो healing हो जाती है और रिवर्स हो सकती है, इंजरी हो सकती है। So that's why we have to be very cautious in that case if there is
especially in the initial air twist, if there is the splint is on or the splint is off, in both cases the DIP should be kept in hyperextension. अगर पेशेंट जो है इसके लिए प्रिपेयर नहीं है तो फिर इसकी स्प्लिंट नहीं लगानी चाहिए और उसका फिर अल्टरनेटिव हमने सोचना चाहिए। द कंसिक्वेंसेस, और लेकिन एक बात है कि अगर स्प्रिंटिंग हम इस पे नहीं कराती जस्ट बिकॉज द पेशेंट इज नॉट रेडी फॉर दैट, तो देयर मे बी सम हार्ट कंसिक्वेंसेस इंक्लूडिंग दैट क्रोनिक मिलेट फिंगर टाइप फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो इस क्रोनिक मिलेट टाइप फिंगर डिफॉर्मिटी में कैस्टोफाइड बनते हैं और साथ साथ जो है जो डिस्टल एम्पेलिंजियल जॉइंट का जो सरफेस है, जो कार्टिकुलर सरफेस या जॉइंट सरफेस, उस जॉइंट को इसके डीजनरेशन भी अर्ली डीजनरेशन भी हो सकती है। So that's why the sprinting is necessary and sprinting should be in hyperextension. These are some of the types of the DIP mallet finger. Uh, Type 1, when it is a close injury, there is small avulsion, fracture may or may not be present, so it doesn't matter, just as a simplest injury. Um, when there is open injury and that is superficial, so that is known as a type 2. But if it is it has been open injury and it is been reached to the tendon level, then it is the type 3. And if there is fracture is involved, so it is known as the mallet fracture, which is type 4. There are again three types of the type 4, type 4A, type 4B, and type 4C. That depend that the situation. If it is in the pediatric and only there is physical injury to the distal phalanx and not that severe type of fracture, so it is 4A. If there is 20 to 50% of the joint surface is involved in pathologically in the fracture of fragments, so then it is B. And if it is more than 50% of the joint surface is involved, then it is the type 4C. So these are some of the types of the mallet finger. Now the next is the boutonniere deformity. ये जो boutonniere deformity है, ये disruption of the central slip of the extensor digitorum communis tendon at the insertion at the base of the middle phalanx. Now जो इससे पहले मिलेट फिंगर था उसमें DIP इन्वॉल्व था, यहाँ पे जो है मिडल फिनेंस का जो बेस है ये इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर EDC से मुराद ये है एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस। सो EDC टेंडन जो है इट अटैच्ड विद द बेस ऑफ द मिडल फिनेंस ऑन द डॉर्सल साइड। सो इस और इससे होता क्या है कि जो लेटरल बैंड होता है इस इंजरी में दे विल माइग्रेट in a more proximal position and more orderly, and this entire situation is known as the Bottineau deformity. Bottineau deformity. इस डिसरप्शन से होगा क्या कि मिडल फिलेंक्स जो है ये फ्लेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि वहां पे जो डिजिटोरम फ्लेक्स क्योंकि एडीसी टेंडन जो है ये इसमें डिस्टर्ब हो जाएगा, सो ऑब्वियसली वहां पर जो सुपरफिशियलिस टेंडन है फ्लेक्स डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये मिडल फिलेंक्स को फ्लेक्शन में लेके जाएगा. If may arise from the blunt trauma over the dorsal structure of the PIP joint or acute flexion of the joint against resistance such as occur in the ball sports. अब ये डिफॉर्मिटीज जो है इनिशियल प्रेजेंटेशन जब पेशेंट की होती हैं सो अमूमन ये एब्सेंट होती हैं, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है तो वहाँ पे द मिडल फिलेंक्स विल शिफ्ट इनटू द फ्लेक्शन. क्लासिक डिफॉर्मिटी जो है व्हेन इट इज, तो वहाँ पे होगा कि DIP जॉइंट जो है ये हाइपर एक्सटेंशन में होगा, जबकि PIP जॉइंट जो है ये फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में होगी, यानी अपोजिट ऑफ द मिलेट फिंगर. मिलेट फिंगर में क्या होता है कि वहां पर DIP जो है ये फ्लेक्शन में होता है, एट द सेम टाइम द PIP जो है ये एक्सटेंडेड होता है, जबकि बोटेनियर डिफॉर्मिटी होता क्या है कि DIP instead of that flexion it would be in hyperextension while the PIP joint will be in the flexion deformity. यहाँ पे ये बात जरूरी है कि DIP जो फ्लेक्स होता है इन द मिलेट फिंगर तो वहां पर एक्सटेंसर डिजिटोरम प्रोफंडस इन्वॉल्व होता है, जबकि यहाँ पे जब मिडल फेलेंस या PIP जो है ये फ्लेक्स होता है, यहाँ पे फ्लेक्स डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो है इन्वॉल्व होती हैं. अर्ली एग्जामिनेशन अगर हम जब करते हैं तो मोस्टली हमें PIP जॉइंट जो है ये फ्लेक्स मिलेगा, जबकि DIP जो है एक्सटेंडेड मिलेगा. इसके अलावा जो मिडल फेलेंस का जो डार्सल बेस है, मेटाकार्पल का बेस है,
फेलेंस सॉरी मेटाकार्पल नहीं, मिडिल फेलेंस का जो डार्सल साइड ऑफ द बेस है, ये उस वहां पर जहां पर ये एडीसी टेंडन जो है अटैच होता है, और चूंकि वो इंजर्ड होता है एट दैट्स वाई वहां पर ओवर प्रेशर डालने से पेशेंट को थोड़ी सी पेन महसूस होगी। सो पॉइंट टेंडननेस ओवर द डार्सल स्लिप ऑफ द मिडिल फेलेंस के साथ साथ जो ये फ्लेक्जन डिफॉर्मिटी, ये अर्ली एग्जामिनेशन में हमें एज ए थेरापिस्ट हमें मिल जाते हैं। पेशेंट जो है इसमें पीआईपी जॉइंट पर बिल्कुल एक्सटेंशन नहीं कर सकेगा, बिकॉज उसके लिए जो रिक्वायर्ड टेंडन है ईडीसी, द एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस, वो नहीं होगा। जिस तरह हमने पिछली मेलेट फिंगर में डिस्कस किया कि पेशेंट जो है, एथलीट जो है, जो इंजर्ड पर्सन है, ये डीआईपी जॉइंट को मेलेट फिंगर में एक्टिवली एक्सटेंड नहीं कर सकेगा। यहाँ जो है पेशेंट जो है ये पीआईपी जॉइंट को जो है ये फुल एक्सटेंड नहीं कर सकेगा। So that is actually the mechanism we can see here. This is the uh, that tendon जो एक्सटेंसर मैकेनिज्म जो पीआईपी में जो मिलेट फिंगर में डिस्टर्ब हो जाता है, दिस इज दैट tendon. So right now it's okay. So that's why there will be extension in the DAP, while यहाँ पर this is the ADC tendon, इसकी rupture होती है which is attached to the dorsal side of the base of the middle phalanx. तो यहाँ पर जैसे rupture हो जाती है, so the extensor digitorum superficialis जो है ये इस PIP joint को flex करेगा, and that would be the deformity known as the boutonniere deformity. So it is opposite of the mallet finger. रेडियोग्राफी जो है समटाइम जस्ट लाइक द मिलेट फिंगर जो है, यहाँ पर भी मिडल फिलेंस में एवल्जन फ्रैक्चर जो है इसकी हो सकती है कि जब यहाँ पर ये जो फ्रैक्चर ये हो गई है, सॉरी यहाँ पे जो ये डिस्ट्रप्शन हो गई है, इसकी वजह ये यहाँ पर एवल्जन हो सकती है, एवल्जन इंजरी हो सकती है, या यहाँ पर सम पार्ट ऑफ द बोन अपने साथ जो है ये डिटेच कर लेते हैं, सो एवल्जन फ्रैक्चर की भी चांसेस हो सकती है, एंड दैट्स व्हाई रेडियोग्राफी जो है ये necessary होता है. The patient can often extend the PIP joint initially, but later on when the deformity, the flexion deformity develop होती है, तो फिर उसके लिए ये possible नहीं होता. Boutonniere deformity always follows a ulnar PIP dislocation. An acute PIP joint injury showing any leg of extension in conjunction with the joint tenderness over the base of the middle phalanx should be regarded as an acute extensor tendon rupture. जो ट्रीटमेंट इसके लिए करनी है, सो दैट इज इफ इवन इफ इट इज लेस देन 30 डिग्री ऑफ द लेग इज प्रेजेंट, सो हमने इसको स्प्लेंड करना है इस फिंगर को, और जबकि पीआईपी जॉइंट को हमने थोड़ा सा फुल एक्सटेंशन में रखना है, विच विल अलाउिंग द एक्टिव फ्लेक्शन ऑफ द डीआईपी जॉइंट फॉर 6 वीक. On return to sport, protective splending is continued for additional 6 to 8 weeks and until a full pain-free range of flexion and extension is available. As we discussed in the mallet finger, यहाँ पर भी जो एवल्जन फ्रैक्चर की जो है मिडल फेलेंस की सिचुएशन हो सकती है. If that is involving the greater than 1/3 of the joint surface, then obviously like the mallet finger we discussed, the open reduction and tender fixation will be required. If long-standing injury, there may already be a fixed flexion deformity of the PIP joint if this is left untreated. This may be treated with a dynamic splint that gradually extends the joint to a neutral position or a joint jack. Surgery may be indicated if this is unsuccessful. ये joint jack जो है ये उन splint को कहा जाता है जो डायनामिक स्प्लिंट होता है और जो ग्रेजुअली जो है एक्सटेंशन को परमिट करता है. अब आते हैं टुवर्ड द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस टेंडन की एवल्जन को. ये ज्यादातर जो कॉमनली प्रेजेंट होती हैं, तो ये रिंग फिंगर में कॉमनली होती हैं, और ये तब होती हैं जब एक एथलीट जो है दूसरी अपोनेंट प्लेयर की जो क्लॉथ से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो इससे डिस्टल फीलिंग्स जो हैं ये सब फोर्सफुली उसकी एक्सटेंशन होती हैं, जबकि इसको एथलीट जो है इसको एक्टिवली फ्लेक्स कर देता है. सो इन दैट केस the on the ulnar side, on the palmar side, the anterior side भी the flexor digitorum profundus जो डिस्टली अटैच होता है डिस्टल फीलिंग्स पर, उसकी एवल्जन जो है हो जाती है. ड्यूरिंग दैट एवल्जन चूंकि इट्स सडन फोर्स इसके पीछे होती है,
दैट्स वे एक स्नैप जो है, ये एक साउंड भी जो है एथलीट को महसूस होगा और उसको एक स्नैप भी जो है महसूस होगा। इसको सम टाइम जो है जर्सी फिंगर भी कहा जाता है। तो जर्सी फिंगर जो है ये इट इज अपोजिट ऑफ द मेलेट फिंगर। मेलेट फिंगर में दोनों में डीआईपी इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन मेलेट फिंगर जो है वहां पे एक्सटेंसर मैकेनिज्म ऑन द डॉर्सल साइड इंजर्ड होता है और जॉइंट जो है ये फ्लेक्चर में चला जाता है। जबकि जर्सी फिंगर में यहाँ पे जो ओलर साइड पे एक्सटेंसर ये सारी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस टेंडन जो है ये इंजर्ड होगा, ये इन्वॉल्व होगा और द डिस्टल फेलेंस जो है ये एक्सटेंशन में चला जाएगा। अगर हम एग्जामिनेशन करें तो हमें मिलेगा कि एक finger जो है it is an extension as compared to the other fingers. There is an inability to flex the DIP joint of the affected finger just because of the injury to the that's causing muscle, which is the flexor digitorum profundus. रेडियोग्राफी जो है इसके लिए जरूरी होता है जस्ट लाइक द अदर इंजरीज के डिस्टल फीलिंग्स से कोई एवर्जन फ्रैक्चर है या नहीं है। और जो बोनी फ्रेगमेंट होता है जो समटाइम्स एवर्जन फ्रैक्चर में होते हैं तो ओलर साइड पर होगा विच विल बी प्रेजेंट विच विल बी डिटेच फ्रॉम द मिडल फीलिंग्स ऑफ द आर द पीआईपी जॉइंट बट ऑन द ओलर साइड। यहाँ पे एक लंप भी जो है पल्पेट किया जा सकता है इन द फिंगर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इवॉल्व टेंडन। और ट्रीटमेंट जो है अर्जेंटली जरूरी होता है स्पेसिफिकली द रिपेयर ऑफ दैट टेंडन, क्योंकि वहाँ पे रियर ट्रीटमेंट जरूरी है इस प्रोफंडस टेंडन को इनटू द डिस्टल फेनिक्स। एंड दिस मस्ट टेक प्लेस विद इन 10 days ऑफ द इंजरी बिकॉज जितना टाइम लगेगा उतना ही जो है वहाँ पे चूंकि स्कीमिया हो सकती हैं, दैट्स वाई जितना जल्दी हो सके इसकी ये सर्जिकल रिपेयर जरूर करनी चाहिए। अब जनरली बात करें कि लेसरेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द हैंड ड्यूरिंग द स्पोर्ट ड्यूरिंग द कॉमन एक्टिविटीज ड्यूरिंग द डेली लाइफ। सपोज एक कारपेंटर या काम कर रहा है और उसकी डिजिट यानी फिंगर या कोई हैंड मशीन में जैम हो जाती है या उस पर कोई वजन गिर जाता है और डेली एक्टिविटीज में हमारे यहाँ पे अक्सर हो जाती हैं। सो लेसरेशन दैट हो सकती है। इसी तरह जो है इन्फेक्शन इफ इट इज ओपन वाउंड और हम उसको फिर ऐसी जगह पे टच करते हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड होता है वहां जहाँ पे जर्म्स होते हैं, सो दैट ओपन वाउंड्स के जरिए वहां पे इन्फेक्शन भी हो सकती है। सो पर्टिकुलर कंसर्न इज लेसरेशन ऑफ द हैंड often involve द एमसीपी जॉइंट द पीएपी जॉइंट। और ये जैसे कहा कि कोई किसी अब दूसरे बंदे की बाइट करने से यानी टीथ से भी हो सकता है, या एक पंच से टू द माउथ हो सकता है या हिटिंग समथिंग विद द हैंड या कोई चीज की गिरने की वजह से हो सकती है। मुख्तलिफ रीजन इसके हो सकते हैं। इन तमाम इंजरीज को जो है इस तरह एज्यूम करना चाहिए कि दे हैव बीन इन्फेक्शन कंटेमिनेशन हो चुकी हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है उसी टाइम जो है ये देनी चाहिए, क्योंकि इफ देयर इज इन्फेक्शन सो तो ट्रीट हो जाएगी। बट अगर हम इसको इग्नोर करके देयर में बी नो सच इन्फेक्शन एंड एक्चुअली इफ देयर इज इन्फेक्शन सो दैट विल लीड टू सम हार्ड एंड हार्श consequences। दैट्स व्हाई हमने हमेशा से इज्यूम करना है कि इन्फेक्शन हो चुकी है एंड दैट्स व्हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है ये स्टार्ट करनी चाहिए। सो द कमेंसिंग ऑफ दैट एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम जो है उसी टाइम जो है ये शुरू होनी चाहिए। The wound should not be closed before that's cleaning, before that's all जो necessary SOPs ये तमाम होनी चाहिए। Laceration over the older DAPRP joints may represent some compound dislocation as well। अगर ये इस तरह होता है तो फिर तो joint जो है is being contaminated and the patient requires hospital admission for the surgical debridement and repair। Otherwise, septic arthritis may present if it is left untreated। हैंड और फिंगर की ओवर यूज कंडीशन क्या क्या हो सकती है? जितनी भी इंजरीज हमने तकरीबन बयान की इस हैंड एंड फिंगर की मोस्टली दे आर द ट्रॉमेटिक एंड एक्यूट इंजरीज, बट सम ओवर इंजरीज भी हो सकते हैं जिनको अक्सर जो है इग्नोर किया जाता है, ओवरलुक किया जाता है। these include the trigger finger, other small joint injuries that are commonly seen in the athletes and people like the rock climbers।
Trigger is caused by a tenosynovitis in the flexor tendon that is large enough to be impeded by the proximal A1 pulley located at the base of the finger. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है जिसमें हम स्प्लिंट दे सकते हैं, लोकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं जस्ट टू इससे पहले कि टेंडर और बढ़ जाए तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है ज़रूरी है। स्टेरॉइड इंजेक्शन जो है ये सम टाइम हम दे सकते हैं वहाँ पे, और उसके बाद जो है फिर सर्जिकल रिलीज जो है ये हम दे सकते हैं। So that is the end of the wrist and hand injuries. That was a long lecture, but we have ended in that in almost several lectures. These are the references which have been used in this lecture. Thank you so much to all of you.